Good morning, students. I hope you have seen previous sessions, and today I want to let you know that what we have learned under the previous sessions. Some of the feedback which I have received from the students, like they want the explanation in Hindi, and the another important thing which I have informed by you, some of you, that whatever content I am delivering, that is not all related to your syllabus. So firstly, come to the point wise. When you want to learn that what is a kind of quasi-contract and what do you mean by quasi-contract? So in the case, the quasi is a word which is a special condition, and contract means you need to know that how a contract get developed, what is contract, what are the types of contract, then only you can understand that quasi is one of the type of contract where legal formalities are not done, but even it exists. So whatever I have narrated till now, I will just take a recap for that. Basic of the contract, basic of the Sale of Goods Act, basics of the Negotiable Instrument Act, basics of the partnership is all needed to learn. Then you can understand the in-depth of the special kinds of points which are mentioned in your syllabus. Whenever you are viewing other video lectures or something else, the people have not created the same exclusively for you. So stick to the content. I have provided the content in your classroom. And in all the content, what you can see, each and every point is explained with detailed example. You can differentiate that why this type of development or formation is happening over there. And time and again, I'm writing in the classroom, like if any query, please post. So I appreciate those people, those who come with their queries, and I expect another also that do come with your queries. Now come to the point. I have posted in the classroom, like what I can view. I have given some topics that I have already been discussed. So basics of contract. अभी जब हम बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो बेसिकली आप यही समझिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब दो पार्टीज के बीच में डेवलप होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों डेवलप होता है? रीजन है, जो भी ऑब्लिगेशन एक पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है, जैसा तुमको पता है कि दो पार्टीज इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो भी ऑब्लिगेशन एक पार्टी का है वो दूसरी पार्टी का जो ऑब्लिगेशन है, ये दोनों ऑब्लिगेशन एकम्प्लिश होना जरूरी है इन अ कॉन्ट्रैक्ट. If I am a party, suppose, and you are a party, and you are entering in a contract with me, and both are the party in the contract. In the case, we both are supposed to accomplish our obligations. Obligations means what? Whatever rights or duties or whatever responsibility fall in your area. If you are selling a mobile phone and I am going to buy that mobile phone, so what is the obligation created over both party here? You will give the mobile to me and I'll pay the price of the mobile to you. So in all this completion of the contract, what will happen? The mobile must be that which I have chosen according to specification. You cannot hand over me the another set which I have not purchased, which I have not confirmed. And I am also supposed to pay the same price which I was agreed of. In a contract, there are agreements between the parties. I also agree, you also agree. This agree with consideration means promise and set of promises. I am also concerned that I'll do my obligation. You are also concerned that you will do your obligation. This all becomes promises and with consideration. Then we are going with an agreement. An agreement
must be enforceable by law. What does it mean? अग्रीमेंट का लॉ के साथ इन्फोर्सेबिलिटी होना जरूरी है। लाइक जैसे मैंने अभी एक छोटी सी एग्जांपल ली कि मोबाइल जो मैंने लिया आपको वही मोबाइल देना है, प्राइस जो है वो मैंने डिसाइड नहीं किया, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो मुझे पे करना है। अब ये मोबाइल चोरी का नहीं होना चाहिए, पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम XYZ विल सेल द मून टू समवन एंड Y विल पे द प्राइस फॉर इट। तो जहां पॉसिबिलिटी नहीं है, रैशनलिटी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी अकॉम्प्लिश हो ही नहीं सकता है। तो या इस केस में क्या हो जाएगा, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कहने का ये मतलब है किसी भी कंडीशन में इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। तो इस पूरे सिचुएशन में तुमने क्या देखा, कॉन्ट्रैक्ट का डेवलप होने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब पार्टीज होनी चाहिए जो एग्री हो अपने अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए। और ये सारा जो प्रोसेस है इसमें एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का ये मतलब है कि जितने भी इसेंशियल एलिमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप होने से एग्जीक्यूट होने तक में वो सारे प्रेजेंट होना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इफ एक सिंगल पॉइंट इज मिसिंग, लाइक मान लो कि पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मान लो किसी का लैंड है, कोई किसी को सेल कर रहा है और फिर पता चलता है कि ये लैंड उसका है ही नहीं, तो इस केस में क्या है, वो कॉम्पिटेंट पार्टी ही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हमें चेक करना है दैट ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इफ ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट then only an agreement can be enforceable by law and it can be said as a contract. I hope there is no problem with that. अब कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट को देखना होगा कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड है क्योंकि सारा इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है। अब कॉन्ट्रैक्ट जब डेवलप हुआ तो तुमने ठीक से काम नहीं किया, चेक नहीं किया, अब बीच में तुमको पता चला कि वो लैंड उसका है ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड नहीं कह सकते हैं। तो वैलिड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जहां सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, लेकिन हो गया, क्या करोगे। तो वहां पे आपको ये देखना है कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसका परफॉर्मेंस पॉसिबल शुरू से ही नहीं था, मतलब वॉइड एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट पॉसिबल। Then another point comes subsequent changes, means to say कुछ ऐसा बीच में हो गया, मान लो कि पार्टी बीच में लुनेटिक हो गई, मान लो कि पार्टी बीच में इंसॉल्वेंट हो गई, पार्टी का डेथ हो गया, नहीं हो सकता है अब परफॉर्मेंस, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ पहले ऐसा था जिसकी वजह से नहीं हो सकता है तो वो वॉइड एब इनिशियो हो गया, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब नहीं हो सकता है, तो दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड ही कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, लेकिन वॉइड को भी मैंने बाइफरकेट कर दिया, वॉइड एब इनिशियो, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, एंड व्हाट इज वॉइड, देयर सब्सिक्वेंट चेंजेस और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोथ। Then comes to voidable. Voidable, able का क्या मतलब है, करने योग्य। अब voidable का ये मतलब है that contract brings the option before the party। अब तुमको पता है कि ये मोबाइल चोरी का है और फिर भी तुम खरीद रहे हो, प्राइस पे कर रही हो, तो इसका क्या मतलब है, दैट यू वांट टू एंटर इन दैट सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज पार्टी के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। अब कोई जान पूछ के कहे कि मुझे गलत काम ही करना है, तो वहां पे क्या होगा, इफ पार्टी इज कॉम्पिटेंट नोबडी कैन इंटरवीन इन द मैटर। आपको लीगल ज्यूरिडिक्शन में काम करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां आपको अपनी कॉम्पिटेंसी से चेक करना है कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं, हमको सही सामान मिल रहा है कि नहीं, तो वहां पे आपको दूसरा कौन मदद करेगा। Nobody can help you out until you check as a party in the contract. So voidable is always an option before the party, whether to accept, whether to reject. क्योंकि voidable में क्या है, दो पार्टी होगी, अब इन दोनों पार्टी को हम लोग ये कह सकते हैं कि एक पार्टी अग्रीव्ड है, दूसरी है गिल्ट। अग्रीव्ड का ये मतलब है कि हम दो, मान लो हम दो पार्टी हैं, ठीक है, एक का नुकसान हो रहा है और कोई नुकसान कर रहा है, तो जिसका नुकसान हो रहा है वो जानबूझ के अपना नुकसान करना चाहता है, तो इसमें दूसरा क्या करेगा,
इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को समझना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। अब इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, लेकिन तुमको सब नहीं पढ़ना है। जब तुम एक किताब पढ़ते हो या एक वीडियो देखते हो तो वो स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए नहीं बना है, इसलिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके रेलिवेंस की नहीं है। यहाँ आपने ये समझ लिया कि एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे हमारे ये 3 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअली में अगर हम तुम्हारे सिलेबस की बात करें तो तुम्हारे सिलेबस में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये दोनों स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। फिर इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेस, इंडेमनीफायर, ये वाला क्वेश्चन एक स्पेशल लेक्चर में आपको बताया जाएगा बोर्ड के ऊपर कि ये कैसे डेवलप होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ आगे। क्वेश्चन, जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो गया तो तुमको पता चल गया कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। मीन्स अब तुमको ये चेक करना है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, मतलब उसका परफॉर्मेंस होके एग्जीक्यूट हो रहा है या बिना परफॉर्मेंस के हो रहा है। मान लो हमने मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ये मोबाइल जो है, उस मोबाइल में हमको मोबाइल मिलना था और तुमको प्राइस मिलना था, लेकिन मुझे पता चला कि ये मोबाइल चोरी का है तो मैंने खरीदने से मना कर दिया। तो अब इस केस में परफॉर्म होके तो नहीं होगा, नॉन परफॉर्मेंस से होगा। तो नॉन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के केस में क्या होगा? बोथ पार्टी हैव डन देयर ऑब्लिगेशन। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, इफ देयर आर टू पार्टी, बोथ पार्टी हैव डन देयर ऑब्लिगेशन, इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस नहीं होता है। मान लो मैरिज का सीजन है, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम XYZ मैरिज गार्डन में इस डेट को मैरिज होने वाला है हमारी फैमिली मेंबर का, हमने एक पैसा का अमाउंट भी दे दिया उसको, एक पर्टिकुलर जो भी हमारा फ्रीज हुआ वो अमाउंट एक पर्टिकुलर दे दिया, और इस बीच में पता चला कि ये मैरिज जो है ड्यू टू सम रीजन एक्सटेंड हो गया, तो ये परफॉर्म तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अब उस डेट को मैरिज ही नहीं है, तो वो गार्डन में क्यों जाएगा। बहुत सारा डे टू डे लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होता है परफॉर्म का। अब नॉन परफॉर्मेंस का रीजन आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या जेन्युइन रीजन है या पार्टी ऐसे ही कह रही है कि हमको नहीं करना है। तो जब ऐसे ही कहोगे नहीं करना है तो वो ब्रीच हो जाएगा। लेकिन नॉन परफॉर्मेंस के और क्या क्या रीजन है? ऑपरेशन ऑफ लॉ, मान लो कि कोई स्टेट से तुमने कुछ ऑर्डर किया और गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, तो अब ये तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। टाइम लैप्स हो गया, तुमने ट्रेन का टिकट करवाया और तुम समय पे पहुंचे ही नहीं ट्रेन पकड़ने, तो लैप्स ऑफ टाइम हो गया। यू कैनॉट सू समवन कि मैं नहीं पहुंची तो आप मेरा पैसा वापस कीजिए, आप ट्रेन क्यों नहीं रोक के रखे। नो, when you have an obligation you have to perform your part, otherwise you cannot sue another party। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शंस आए। एक ऑप्शन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ने का मतलब है कि दो तरीके से हो सकता है, वन इज एक्चुअल, अनदर इज एंटीसिपेटरी। अब एक्चुअल क्या है कि हमने जिस डेट को परफॉर्म करना था उस डेट को, जैसे तुमने एक ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है, तुम लेना चाहते थी, तुम ले ली, तुमने लिया, तुमने मंगवाया, तुमने ऑर्डर किया, सब प्रोसेस किया, लेकिन तुम्हारा आज डेट को आया डिलीवरी करने के लिए, तुम्हारे पास कैश नहीं है या तुम घर पे नहीं हो, तुमने मना कर दिया। मीन्स ऑन द ड्यू डेट यू हैव डिनाइड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी क्या है? बिफोर द टाइम you have informed the another party your intention not to perform। मतलब तुमने क्या किया? तुमने सामने वाली पार्टी को पहले से ही बता दिया कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाले हैं। मान लो कि कोई किसी के मैरिज का एग्जांपल लिया, वही ले लेते हैं, कहीं कोई परफॉर्म करने वाला है, ठीक है, अब उसके बीच में उसका तबियत खराब हो गया, तो उसने पार्टी को कह दिया कि मेरा तबियत खराब है, आप किसी और को वहां पे अलाउ कर दीजिए। तो इससे क्या होगा? नुकसान सामने वाली पार्टी का कम होगा। लेकिन ऑन द डेट तुम मना करोगे तो इससे क्या होगा? अनदर पार्टी का नुकसान हो सकता है ज्यादा, जिसके लिए, और किसी कितना भी नुकसान हो, नुकसान कम हो या ज्यादा हो, कॉम्पनसेशन तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी विल बी सफरिंग फॉर द लॉसेस कह सकते हो, या उसका जो भी नुकसान है वो सब तुमको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो नुकसान है। इसीलिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या पार्टी समय पे मना कर रही है या पार्टी मना करने से
पहले मतलब परफॉर्म करने से पहले मना कर दी है। अब ब्रीच करोगे तो ब्रीच के केस में क्या होगा, रेमेडीज देना होगा। अब तुम किसी को ड्यू डेट के दिन मना करोगे तो उसका नुकसान होगा, तो उसका कॉम्पनसेशन अलग होगा, और किसी को तुम समय से पहले मना कर दोगे तो उसका कम नुकसान होगा, तो उसका नुकसान का कम भरपाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई ब्रीच करती है, इफ पार्टी फेल्स और inform their intention not to perform the contract, in the case the another party which will be suffering with the loss, they need to compensate, they need a compensation. That's why there are steps to कह सकते हैं उसको remedies for breach of contract. This was all about the basics of contract. I hope now everyone is clear with the basic of contract. Now I will further narrating the Sale of Goods Act again.